Good afternoon, everybody. Yeah, thank you, Tashu. Thank you. Nice to see you. Welcome back, beta. I guess मैं थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया. Actually यहाँ पे total chaos चल रहा है. They are showing something else. वो मुझे दिखा रहे थे कि you are already late. अभी 3 बजे नहीं है. So they are saying your class was supposed to start at 3. So then I joined. I guess students are still to join. So we'll wait for some time till students join. Then I will start. Yes, Tashu, thank you, beta. Done. Good afternoon, Keshav. Prachi, good afternoon. We'll just wait for a few seconds till everybody joins. Yeah, she's better now, Tashu. Thank you, beta. Thank you. God bless. We'll just start in a few seconds because probably, I think because I joined maybe little late, maybe a couple of minutes earlier. So students are still joining. We'll just wait for a few moments before we start. You know, this is a very important topic because I've seen that a lot of questions on mains are coming on summary suits, and that too of 12 marks, 15 marks. And I've always noticed that in these last few years, I've seen a lot of questions in interview also on summary suits as well as interpleader suits. Normally interpleader suits के ऊपर छोटा question आता है 5 to 7 marks का, but summary suits पे तो full marks, full questions आ रहे हैं. A lot of questions are being framed on summary suits. Oh, you are a practicing lawyer, Keshav. Wow. Oh, that's wonderful. In fact, one of my students, he topped the ADJ Haryana, Rajneesh. He just in the recently announced results of Haryana, he topped ADJ. He was, of course, a very brilliant student of mine, and I'm sure you will also make it. A lot of my students, in fact, last ADJ results, 2-3 students from here, they are my students, they cleared Delhi ADJ. So maybe now you are also in the queue. Good afternoon, Saurabh. Good afternoon, Gaurav. God bless you. Thank you for your flowers. Good afternoon, Nishtha. I'm good, thank you. Afternoon. Good afternoon, Rohit. Happy Ram Navami to you also.
So as I was saying, that this summary suits and interpreter suits बहुत आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं. God bless you, Vivek. Rishabh, good afternoon. Mayank, good afternoon. Okay, you are new, कोई बात नहीं, always welcome. Interview session अगला है. I don't know. I think they will post it on the YouTube. वहाँ देख पाओगे आप. Don't worry. So अभी मेरा इस क्लास के बाद ही इंटरव्यू सेशन है. So I guess you will be able to see it there. Good afternoon, Hiral. YouTube चैनल पे आ जाएगा वो शशि. अभी after I have regular now because a lot of my students got cleared Delhi lower judiciary Delhi. So I think we are going to take their interviews and post them on YouTube. Good afternoon, Pramod. Good afternoon, Aditi. Sneshish, good afternoon. Good afternoon, Anu. हाँ आ जाना, no problems. Anu, but only thing is, I hope seats हों. Because जो मेरा बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन 5 जून को चंडीगढ़ में, SCO 145 146 के ऊपर है वो, तो उसमें सिर्फ 300 सीट्स हैं और मैं एक ही बैच लेता हूँ. ऑलरेडी आई थिंक 145 हो चुकी हैं एडमिशंस, तो हाफ एडमिशंस हो चुकी हैं. आई डोंट नो कि तब तक बचेंगी कि नहीं. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले ही करा लो. गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग जगदीप, परिधि गुड आफ्टरनून, रंजन गुड आफ्टरनून, शीलू गुड आफ्टरनून. आई डोंट नो, बट क्योंकि सीटें कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं, सो बहुत जल्दी अभी तो हमने अराउंड मार्केटिंग भी शुरू नहीं की, एंड स्टूडेंट्स केम टू नो थ्रू माय फेसबुक पोस्ट्स, सो दे ऑलरेडी ज्वाइंड. Yeah, Shashi, I'm on Unacademy, don't worry. Good afternoon, Muskan. Good afternoon, Akamsha. Okay, students are still joining. I'll just wait for a couple of moments. Good afternoon, Tina. Good afternoon, Preeti. Simranpreet, good afternoon. I'm good, thank you. Yeah. हाँ मयंक, मेरे लेक्चर्स रहेंगे, डोंट वरी. अच्छा नहीं, डोंट वरी प्रिया. दे शुड नॉट रिमेन कंफ्यूज, क्योंकि फीस का एडजस्टमेंट के लिए अनअकैडमी ने कुछ किया है. सो आई गेस यू कैन कंटैक्ट अनअकैडमी. उनका एक नंबर है, मैं उसको शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसमें आप बात कर सकते हैं. और थैंक यू कुमार. ऑफ कोर्स you are a good judicial aspirant, you will definitely succeed. बस मेहनत करो. योगेश गुड आफ्टरनून, विनी गुड आफ्टरनून. हाँ अदिति, मैं हूँ, डोंट वरी. आई एम इन एन अकेडमी, आई रिमेन. हरियाणा योगेश आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगा. इवन दिल्ली, both will come early next year. You should be ready by then. Aditi, good afternoon. Thank you for your flowers. हाँ कुछ है ऐसा सिमरनप्रीत, कुछ बेनिफिट्स हैं. संगमित्रा, गुड आफ्टरनून. हाँ आरजेएस तो जल्दी आएगा, ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है पोस्ट. आई थिंक नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है 2-3 महीने में. हाँ इलेक्शन का नॉर्मली कोई लेना देना नहीं होता, बट हो जाता है. गुड आफ्टरनून राज साहब, थैंक यू फॉर योर फ्लावर्स. ओके, आई गेस अभी भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं. चलिए,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो नहीं हो रहा, आई थिंक रोहित. नोबडी इज टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकॉज सिवाय बिहार के और कहीं नहीं है. एंड वी आर केटरिंग टू ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री. शायद इसलिए नहीं है, बट प्रोबेबली वी कैन गेट इट स्टार्टेड बिकॉज वी हैव टीचर्स, वो कर लेंगे. ओह दिस हाँ, दिस इज माय व्हेन आई जॉइंड आईपीएस, तो मेरे पूरे आईपीएस का बैच चाहिए, एकेडमी की ही है. यस अमर, गुड आफ्टरनून, राम राम बेटा. ओके चलिए, नाउ स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉइनिंग. ओ अच्छा, ओके प्रिया, मैं ऐड कर दूंगा. यस, एक स्पेशल क्लास है, एक मेरा इंटरव्यू है जो अभी दिल्ली में पास हुए हैं, उन बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनका इंटरव्यू है विच वी विल पोस्ट ऑन यूट्यूब, वो है. चलिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके चलिए, आई गेस मोर और लेस स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. अब जो बाद में ज्वाइन करें दे कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. यस ऋषभ, आई कांट हेल्प इट, आई ऑलवेज लव टू वर्क 24/7. सिंपली डोंट वरी, वो आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा. आकांक्षा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. हाँ आकांक्षा, मेरे नॉर्मली थर्सडेज को होती हैं एट अबाउट 3 o'clock, तो वो आप कभी भी अटेंड कर लेना, नॉर्मली होती हैं मेरी. ओके yeah, I'll inform Raj sir. Now, before I start, we all know that Unacademy is doing outstandingly well as far as judiciary preparations are concerned. Good afternoon, Amandeep. And also the good news is that I'll be going in the hybrid mode. I'll be taking offline as well as online live classes only from 5th of June in Chandigarh. So there are only 300 seats क्योंकि उतनी फिट आती हैं वहां पे. I'll take only one batch. और उसमें बहुत मेहनत, 7 दिन चलेगा, 14 months का कोर्स होगा. यस, सेम क्लासेस विल बी लाइव. रोज लैंग्वेज होता है, हर हफ्ते टेस्ट है, वी ऑल नो. महीने में एक बार मेंस का टेस्ट होगा जो हम लोग वहीं मार्क करेंगे. एक क्लास महीने की इंटरव्यू की क्लास होगी, एंड मेनी अदर थिंग्स जो मैं सोचता हूं कि आर मस्ट फॉर एनी पर्सन टू सक्सीड इन जुडिशरी. गुड आफ्टरनून रीना. नाउ today's topic is a very important topic as I was telling you earlier. ये क्वेश्चन बहुत बार आजकल मेंस में आ रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये मेंस का क्वेश्चन है समरी प्रोसीजर्स का. समरी सूट जो है वो ऑर्डर 37 में कवर्ड है. सी एज वी ऑल नो कि जो प्रोसीजरल पार्ट है सीपीसी का वो ऑर्डर्स में कवर्ड है, और 51 ऑर्डर्स हैं हमारे. स्पेशल सूट्स जो शुरू होते हैं हमारे, उनका आखिरी ऑर्डर है ऑर्डर 37. स्पेशल सूट का मतलब होता है जहां पे स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है. अच्छा, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आई एम टेलिंग यू, ये डेफिनेट पूछा जाएगा. ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट एग्जाम्स में आएगा, बी वेरी वेरी श्योर. इसके नोट्स बनाते रहना, बहुत काम आएगा. इवन दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है. इसके बैकग्राउंड में जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अगर लॉ पढ़ो तो उसका वाई पढ़ना जरूरी होता है. वाई. नाउ प्लीज रिमेंबर, सिविल सूट्स आर ऑलवेज वेरी लॉन्ग ड्रॉन बैटल्स. हमेशा कहते हैं कि सालों साल चलते हैं सूट्स. जनरल बिलीफ है ये कि अगर किसी ने कोई सूट डाल दिया तो वो बहुत लंबा चलेगा. ऑर्डर 37 एक तरीका है जिसके अंदर बहुत जल्दी डिस्पोजल हो जाता है. So basically, if I was to say what is the object of order 37,
I would like to quote a Supreme Court judgment to tell you the object. Good afternoon, Aarti. Good afternoon, Akash. Now, this object was laid down by Nibha Kapoor. Nibha, N-E-E-B-H-A. Nibha Kapoor versus Jayanti Lal, 2008 Supreme Court. In such cases, it was held, in this case it was held, that the basic object of Order 37 is expeditious disposal of a suit. Speedy remedy is needed. Okay. Now, how is this speedy remedy availed of? कैसे speedy है ये? Order 37 हमारे को बहुत सारी चीजें क्लियर करता है. सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से कोर्ट्स को ये ऑर्डर अप्लाई करता है. Which courts does this order apply to? So please remember, this order applies to high courts, all city civil courts, and also courts of small causes. This question has come in the prelims. Does Order 37 apply to a high court? The answer is yes. Does it apply to a small causes court? The answer is yes. There are many other courts besides the high courts, the city civil courts, and the small causes courts. In case we want to apply this order to those other courts, then in such cases, the high court has to give special permission. So special permission will have to be given by the high court to apply this order. Now the next question arises. To which matters does summary procedure apply? So I hope सबको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कौन से कोर्ट्स पे अप्लाई करता है. दूसरा जो क्वेश्चन उठता है, कौन से मैटर्स टू विच क्लासेस ऑफ सूट्स डज दिस ऑर्डर अप्लाई. सो नेचुरली नाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी क्लियर कि हर सूट पे समरी प्रोसीजर नहीं होता. इट इज ओनली ऑन सम क्लासेस ऑफ सूट्स. कौन से क्लासेस ऑफ सूट्स हैं? पहला, जहां पे सूट्स रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ऑर्डर है ये अर्लियर सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करता था. बट देन इन 1976 समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 3 वर्ड्स काट दिए गए और अब सिर्फ समरी प्रोसीजर है. ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज नो लॉन्गर देयर. सो कहां अप्लाई करता है? नेचुरली उन मामलों में जो कट एंड ड्राइड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, या अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में से कोई ठोस चीज है, या कोई इनैक्टमेंट है जहां पे क्लियर मनी इतना आपने देना है, या कोई गारंटी है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने अपनी कोई चीज हाइपोथेटिकेट कर दी, क्लियर बताया हमने. सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, कौन से मामले जाएंगे? वो मामले जहां पे क्लियरली हमें पता है कि इसने इतना पैसा देना है, जहां पे कट एंड ड्राइड मामला है, पहली बात. और दूसरा, जहां पे द मॉनेटरी वैल्यू इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड देयर इज नो डिस्प्यूटिंग दैट फैक्ट. डिस्प्यूट ये नहीं है कि कितना, डिस्प्यूट ये है कि देना है कि नहीं देना. सो आई होप यू आर क्लियर ऑन द सेकेंड पार्ट, विच मीन्स कि ये कौन से क्लासेस ऑफ सूट्स को अप्लाई करेगा. व्हेन आई गो टू रूल 1 टू सब रूल 2, तो वहां ये चीज क्लियर की गई है कि ये जितने भी सूट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर जहां पे डेट्स रिकवर करने जो बिल्कुल क्लियर है कि ये डेट है, और ये डेट कहां से अराइज होना चाहिए, आइदर आउट ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, या कोई लॉ हो, कोई इनैक्टमेंट हो, और यहां कोई गारंटी हो.
और या फिर कोई ऐसा ही नहीं हो जिसको हमने अपनी पावर्स दे दी। सो आई होप एवरीबडी, फर्स्ट क्वेश्चन वी क्लैरिफाइड, कौन से कोर्ट्स पे समरी प्रोसीजर होगा अप्लाई। सेकंड, कौन से क्लासेस ऑफ सूट्स पे होगा। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एवरीबडी क्लियर के कहां होगा और किन चीजों पे होगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्वेश्चन सारे मेंस में आए होंगे। नाउ विद दिस बैकग्राउंड, प्लीज रिमेंबर, there is a clear distinction between an ordinary suit and a summary suit. क्या फर्क है? In an ordinary suit, the defendant has a right to defend. हर ordinary suit में defendant का right है कि वो defend करे. In summary suit, कोर्ट डिसाइड करता है कि डिफेंड करे या ना करे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, कोई ऐसा सूट है जहां डिफेंडेंट नहीं है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछा गया है। उस टाइम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है सूट में डिफेंडेंट ही ना हो। तो याद रखना, समरी सूट में डिफेंडेंट हो या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करता है। कॉमन सेंस की बात है कि क्यों, वाई। अगर सपोज एक मामला है, एक सपोज मेरी हुंडी है, एक प्रॉमिसरी नोट है जिसके अंदर मैंने लिखा है आई ओ यू 1 लाख रुपीज ऑन दिस डेट। अब उसके अंदर क्या कंटेस्ट होना है? क्लियर लिखा हुआ है, आपने लिखा है, आप मानते हो कि हाँ ये मेरा कागज है, तो अब क्या लड़ना है? अब आप सीधा पेमेंट करो, आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन करेंगे और क्या। आपको बुला के टाइम वेस्ट ही करेंगे ना। आप कहोगे हाँ मैंने नहीं लिखा, ये वो है। तो जहां क्लियर है मामला, जहां कोई डाउट्स नहीं है, व्हाई आर वी अननेसेसरी मेकिंग इट लिंगर ऑन? क्यों डाउट क्रिएट कर रहे हैं? गॉट इट? कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, कोई ऐसा सूट बताओ जहां डिफेंडेंट ना हो, जो बिना डिफेंडेंट के डिसाइड हो जाए। तो वो ये सूट है समरी सूट। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आई एम गोइंग टू डिवाइड द एंटायर प्रोसीजर इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? सी, पॉइंट नंबर 1, जब भी आपने समरी सूट डालना है तो क्लियरली आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर 37 का समरी सूट है, ताकि शुरू से ही कोर्ट उसको डिफरेंटली डिसाइड करे, उसको डिफरेंटली ट्रीट करे। सो दैट इज व्हाई इन रूल 2, अगर हम ऑर्डर 37 के रूल 2 में आते हैं तो क्या कहता है रूल 2? A suit to which this order applies will be instituted by presenting a plaint which will contain a special averment to the effect that this suit is filed under this order. Clearly आप इस चीज को लिखोगे कि ये ऑर्डर 37 में हम सूट फाइल कर रहे हैं। दूसरा, आप एक और अंडरटेकिंग दोगे कि कोई ऐसा मैटर नहीं है जो रूल 1 में नहीं दिया गया। ये नहीं कि आप कोई भी सामान लेके आ गए कि जी ये मेरा ले लो जी सूट। नहीं, मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि ओनली लिमिटेड सूट्स कैन कम अंडर समरी सूट्स। तो नेचुरली जब हम आपको समरी सूट में लेके आ रहे हैं तो मैटर भी तो वही होना चाहिए जो अलाउड है रूल 1 में। तो ये भी आप अंडरटेकिंग दोगे। तो पहली चीज क्या होगी आपकी प्लेंट में? मेरा ये प्लेंट ऑर्डर 37 का है, समरी सूट का है। दूसरा, ये उसी मामले को डील कर रहा है जो समरी सूट अलाउ करते हैं। गॉट इट? थर्ड, टाइटल क्या होगा? टाइटल 2C में दिया गया है, द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ द सूट, नेमली अंडर ऑर्डर 37 CPC 1908। तो आप ये क्लियर टाइटल दोगे, ऑर्डर 37 का CPC का ये मामला है। नाउ इज एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? सब क्लियर हो गए?
राजसा हर जगह आ रहा है, नॉट ओनली गुजरात में, ये हरियाणा में भी आया था, यूपी में भी आया था, उड़ीसा में भी आया था, हर जगह आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने आज का टॉपिक लिया है ताकि सब स्टूडेंट्स का ये तैयारी हो जाए, बिकॉज मुझे लगता है फिर आएगा, मेंस में बार बार आएगा ये क्वेश्चन। नाउ विद दिस बैकग्राउंड, अब अगला पॉइंट लेते हैं। अब आगे का प्रोसीजर क्या है? अब बहुत ध्यान रखना, ये प्रोसीजर बड़ा टेक्निकल है। पहला प्रोसीजर क्या है? यू नो, जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा? वो एक समन भेजेगा डिफेंडेंट को। प्लीज याद रखना, समरी सूट में 2 समन जाते हैं, 2 समन्स गो इन अ समरी सूट। तो मैं पहला समन की बात कर रहा हूं। पहला समन क्या होता है? पहला समन, हम उसको कहते हैं समन फॉर अपेयरेंस। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 10 बार पूछा गया है कि 2 डिफरेंट टाइप के समन्स कहां होते हैं और उनका नाम क्या है। सो पहले को कहते हैं समन्स फॉर अपेयरेंस। समन्स फॉर अपेयरेंस क्या होता है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पहला पॉइंट ये है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को समन भेजता है कि भाई साहब आ जाओ, कम ओवर, तुमने ये पैसा मेरा देना है। अब अगर डिफेंडेंट के मन में चोर है तो वो क्या करेगा? वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन उसके खिलाफ हो जाएगा। सो पहला स्टेप क्या होता है? आई विल सेंड हिम अ समन फॉर अपेयरेंस, कि आई एम सेंडिंग यू अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, दिस इज द समन, प्लीज अपीयर। और आगे अगला स्टेप मैं बताता हूं। अब अगर डिफेंडेंट के मन में चोर है, उसके पास कुछ नहीं है आंसर, उसके पास कोई डिफेंस नहीं है, तो वो आएगा क्या? वाई विल ही वेस्ट टाइम? वकील को करना पड़ेगा, वकील का खर्चा होगा, तो वो चुप रहेगा। तो यही आधा पॉइंट, आधे मामले तो यही खत्म हो जाएंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? सो पहला होता है समन्स फॉर अपेयरेंस। इसको कवर किया गया है रूल 2 के सब रूल 3 में। हाँ, तो अब चलिए देखते हैं सब रूल 3 क्या कहता है। द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट referred to in sub rule 1 unless he enters an appearance। सीधा मुंह उठा के डिफेंडेंट नहीं आ सकता कि जी मैं आ गया डिफेंड करने के लिए, नहीं, पहले अपना अपेयरेंस डालो। सो पहला समन किस चीज का जाता है? समन्स फॉर अपेयरेंस। इसके लिए अगर आप देखो रूल 2 का सब रूल 2, द समन्स ऑफ द सूट शैल बी इन फॉर्म नंबर 4 ऑफ अपेंडिक्स बी और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो एक स्पेसिफाइड फॉर्म है समन फॉर अपेयरेंस का, तो हम एक समन भेजेंगे अपेयरेंस के लिए कि डिफेंडेंट को कि तुम आओ, हाजिर हो, क्योंकि हम तुम्हारे खिलाफ ये सूट लेके आए हैं। अब अगर डिफेंडेंट नहीं आता, if the defendant does not come, then and in default of his entering an appearance, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted। तो इसका मतलब है वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो कहता है क्या करूंगा आके, बात तो सच ही है, तो आई एम एडमिटिंग द प्लेंट। गॉट इट एवरीबॉडी? सो अब क्या होगा? एक बार मैंने आपकी बात मान ली, मैं मानता हूं कि मैंने आपके पैसे देने हैं, तो फिर सीधा प्लेंटिफ को डिक्री मिल जाएगी। सो व्हाट विल हैपन? द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर एनी सम not exceeding the sum mentioned in the summons together with interest and also costs। तो अब क्या होगा? सीधा प्लेंटिफ के डिक्री मिल जाएगी कि जी तुम्हारा इतना पैसा, इतना इंटरेस्ट, इतना कॉस्ट मिला के ये तुम्हें सारा दिया जा रहा है। एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर ऑन द फर्स्ट समन, समन फॉर अपेयरेंस? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर ऑन दिस स्टेप नंबर 1? ओके, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2। अब एक चीज बड़ी क्लियर है, अब एक बार आ गया, वंस द पर्सन कम्स, डिफेंडेंट कम्स, नाउ
plaintiff gives him second summon. That is called summons for judgment. उसको क्या कहते हैं? Summons for judgment. Summons for judgment ये दूसरा समन है. इसमें क्या होगा? हम उसको कहेंगे ये ले प्लेंट की कॉपी, ये है मेरे एलिगेशंस, तुम सारा पैसा जमा कराने को तैयार हो क्या? क्या तुम मानते हो? 10 दिन का टाइम दे रहे हैं हम तुम्हें, 10 डेज के अंदर तुम डिसाइड करके बता दो. अब यहां तो डिफेंडेंट कहेगा कि ये मैं मानता हूं, पैसे चुका देता हूं. अब अगर वो कहता है नहीं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, मैं पैसा देने को तैयार नहीं हूं, देन द मैटर गोज टू द कोर्ट. अब कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि अब डिफेंडेंट अपना जवाब देगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा. रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट पढ़ेगा. कोर्ट पढ़ने के बाद देखेगा कि ये डिफेंस एक बकवास है, फालतू की इधर उधर की बात कर रहा है, कि ये ठोस है. Have you got the point? So now, second summons for judgment, second summon for judgment जब दिया जाएगा तो डिफेंडेंट 10 दिन के अंदर अपना जवाब देगा. या तो वो कहेगा ठीक है जी मैं मान गया, या वो कहेगा मैं नहीं मानता, मेरे को तो पूरा सूट लड़ना है जी. तो अब कौन डिसाइड करेगा कि ये, बिकॉज हर डिफेंडेंट वाहियात की बातें करेगा, जिसको हम कहते हैं मून शाइन. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु विल डिसाइड कि ट्रायल होना चाहिए कि मामला यहीं खत्म करें? नाउ द रोल ऑफ द कोर्ट कम्स. कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिफेंडेंट को डिफेंड करने को अलाउ करें या ना करें. सो वेदर लीव टू डिफेंड शुड बी ग्रांटेड और नॉट. समझ गए सारे? तो लीव टू डिफेंड, या निष्ठा, I'll quickly repeat in English, please all students pay attention. Whenever firstly there is a summary suit, the plaintiff will clearly say that this is a summary suit. It will only pertain to those matters which are given in Rule 1, which are normally negotiable instruments or specified debts. Now the procedure is that first the plaintiff is going to give a summons for appearance. You send a summons to for appearance, defendant please come to the court because now I'm going to put up this suit against you. If and he sends a copy of the plaint. The defendant knows that he is at fault. He doesn't come. Now when he doesn't come, matter is clear. A decree will be immediately passed in favor of the plaintiff, and the decretal amount will have not only the principal but the cost and the interest. Okay. Now step number 2. Suppose the defendant appears, then the plaintiff gives him another summon. That is summon for judgment. Why should a judgment not be passed against you? Is there any defense? Now 10 days are given to the defendant, that you bring your answer, your written statement in 10 days. The defendant brings his written statement. Now the court comes into picture. The court will decide whether the defense brought by the defendant is a sham, is a moonshine, is useless, or the defense brought by the defendant has some substance, it has some value. Now, depending on that, depending whether the defense is acceptable or not, the court will now either give leave to defend to the defendant or will refuse leave to defend. Now, in case the court refuses the defendant, he says, no, I don't accept. Your answer is absolute sham. Bakwas hai, kuch bhi nahi hai. So now what happens? Now the decree will be passed in favor of the plaintiff. But in case
the court accepts that yes, this defense appears to be plausible, this defense is acceptable, then a regular trial will start. Then the whole trial will start. Tina, if the defendant doesn't come, it is deemed admission. A decree will be given in favor of the plaintiff. Is everybody now clear? Is everybody clear on the procedure? What is the procedure? Okay. Now, suppose there's another eventuality. This question was asked in the exams. Suppose the defendant says, I admit half the claim, but I don't admit the second half, and I'm giving my defense for the second half. Well, in such cases, it is a part admission. So decree will be passed regarding the part admission, and that part which is not accepting, the case will start if the court accepts the defense. Now, naturally, a very important question has erupted. A very important question has come up. The question is, court has been given too much of power. Court, tomorrow you are a judge. You are sick and tired. Subah se kaam kar rahe ho. Agar nahi, the defendant, go. I'm not going to accept your defense. So, it can be an arbitrary order. That is why there are many Supreme Court judgments giving guidelines as to when the court should give leave to defend and when the court should not give. Please write down these landmark judgments in which when to give the leave to defend and when not to give leave to defend was crystallized by the Honorable Supreme Court in a catena of judgments. I'll quote one important judgment. Sunil Enterprises versus SBI, Commercial and International Bank. This is 1998 Supreme Court. I would like to quote another Supreme Court judgment on this. Southern Sales and Services versus SAUERMILCH, Sour Milch Design. This is 2009 Supreme Court. Now, in these, and there are many other judgments, two are enough. In these judgments, the Supreme Court clarified that when should leave to defend, this is the question which is asked in the mains. When should a leave to defend be granted and when should it be denied in a summary suit? The answer to this lies in these two very important judgments. These are landmark judgments. So let me quickly give you a summary of when to deny and when to give. The Supreme Court has held where the defense is good, it appears to be on merits, unconditional leave should be given. Second, where the defendant's defense seems reasonable, again unconditional leave should be given. Third, where the defense may be acceptable or may be rejectable, their conditional leave should be given. Now, what is conditional leave? Conditional leave is you first deposit the entire money of the decree and then we will accept your defense. So, wherever the defense may be possible or may not be possible, in such cases, you can first ask him to deposit the money of the decree and then only accept the defense. And lastly, where the defense is an absolute sham, where the defense is absolute moonshine, their leave to defend must be
rejected. It should not be given. Is everybody clear on the two Supreme Court judgments कि when the leave to defend should be given and when leave to defend should not be given? Okay. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है. मेन क्वेश्चन ही ये है क्योंकि एंटायर पावर इज विद द कोर्ट टू गिव और नॉट टू गिव द पावर टू लीव टू डिफेंड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay. Now is everybody clear on the entire law of summary suits? Now, please remember one thing we very important. Normally what happens is there are two types of cases. Either the entire defense looks to be a total sham, बिल्कुल बकवास डिफेंस है, उस मामले में तो सीधा रिजेक्ट कर दो. जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है आफ्टर ऑल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज देयर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So basically to deny a person to give his defense is against the principles of natural justice. तो नेचुरल जस्टिस से आप मना कर रहे हो. अगर आप कहते हो मैं तुझे डिफेंड ही नहीं अलाउ करता, तो जहां भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत डिफेंस लगता है सही है, तो वहां पे सबसे सेफ तरीका क्या है कि यू गिव हिम अ कंडीशनल लीव. यू टेल हिम पैसा जमा कराओ और डिफेंस का मैं तुम्हें अलाउ करता हूं. I hope now everybody is clear on all these aspects. Now, अब एक चीज बताओ. Now be very clear on this next part. जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये बहुत बार अभी इंटरव्यू में पूछा गया. हिरल डिपेंड करेगा ना किस तरह का उसका डिफेंस है. डिफेंस बिल्कुल बेकार है तो फिर क्या लगाना. अब मेरा एक बहुत लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट ऑन समरी सूट्स, बहुत ध्यान रखना. सपोज कोर्ट ने डिक्री पास कर दी. सपोज कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और अब डिफेंडेंट ने अपना कुछ एविडेंस ले आया और यहां वो पहले आया ही नहीं था. सपोज अब अपेयरेंस, जब समन फॉर अपेयरेंस हुआ, डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं हुआ, बाद में उसने प्रूव कर दिया सर मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा था. नाउ कैन यू सेट असाइड योर डिक्री? प्लीज रिमेंबर, गो टू रूल 4, पावर टू सेट असाइड डिक्री. आफ्टर डिक्री द कोर्ट मे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस set aside the decree and if necessary stay or set aside execution and may give leave to the defendant to appear to the summons and to defend the suit if it seems reasonable to the court so to do. Is everybody clear? क्या सारा क्लियर हो गया लॉ समरी सूट का क्या तरीका है और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं? I hope now everybody will be able to answer these questions. बहुत सारे questions आते हैं इनमें. चलिए, अब हमारे पास टाइम कम है, अब हम चलते हैं दूसरा सूट जो मैंने लिखा था, आज करा दूंगा, इंटरप्लीडर सूट्स. इंटरप्लीडर सूट जो है वो इंटरप्लीडर सूट्स सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर 35. सो पहले काम करते हैं, जल्दी से सेक्शन 88 पे चलते हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग सेक्शन 88, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरप्लीडर का मतलब क्या होता है. इफ यू सी 88 के ऊपर क्या लिखा है, इंटरप्लीडर. See, basically, what is the meaning of interplead? Interplead का मतलब होता है to litigate in order to settle a point concerning a third party. Let's take an example. पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं. एक
एक प्लेंटिफ है, ए इज अ प्लेंटिफ, वो कहता है जी मैं मानता हूं मैंने चार डिफेंडेंट है। ए कहता है कि मैं मानता हूं कि मैंने चारों को पैसा देना है, पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि चारों को कितना कितना देना है। देयर आर 4 डिफेंडेंट्स बी सी डी एंड ई। अब बी कहता है कि जी मैं तो 70% लूंगा, सी कहता है मैं 50% लूंगा, डी कहता है मैं 80% लूंगा, ई कहता है जी मैं तो 90% लूंगा। अब मैं कंफ्यूज हूं सर, मैं तो देने को तैयार हूं, पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि किसको कितना दूं। तो याद रखना, इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ किस बात का सूट डालता है? कोई लड़ाई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की नहीं है कि जी डिफेंडेंट ने मेरा पैसा देना है ना। इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ ऑलरेडी जानता है कि मैंने देना है, वो इस चीज को कंटेस्ट नहीं कर रहा, वो ये कहीं नहीं कह रहा कि जी मैंने पैसे नहीं दूंगा। वो कहता है जी मैं पैसे लेके खड़ा हूं, पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि मैं बी सी डी ई को किसको दूं और कितना कितना दूं। सो पहला क्लियर मुझे ये करो कि इनमें से कितना हिस्सा किसको दूं। सो बेसिकली इंटरप्लीडर का मतलब होता है कि जो पार्टी है उनके बीच का आपस की लड़ाई है, इंट्रा। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज इंटरप्लीडर। इंटरप्लीडर में क्या होता है कि जो पार्टी है उसके इंट्रा किसका कितना हक है, हाउ मच इज टू बी गिवन टू एनी पार्टी इनसाइड। तो इसका मतलब ये हो गया, the suit is not between A and B, C, D, E. No, the suit is between B, C, D, E themselves, so that A is clear that whom and to what extent should he pay the parties. Clear हो गया सब? Everybody clear? So please remember, how is it different? How is it different? See, normally speaking, a suit is brought by one party. The controversy is between two parties. Here, please remember, in an interpleader suit, it is an exception. It's an exceptional type of suit. Why? Because the real dispute is not between plaintiff and defendant. The main dispute, see, the plaintiff is not at all in the picture that he's contesting anything. He's not contesting. He just wants a clarification that since the defendants have different and rival claims, I am confused. Tomorrow, if I give 70% to B, C is going to put up a fresh suit against me. If I give more money to C, D is going to put up a fresh suit against me. So despite paying the money, all these defendants are going to drag me into litigation कि मुझे ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। समझ गए सारे? सो इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ क्या मांगता है? इन एन इंटरप्लीडर सूट द प्लेंटिफ फाइल्स फॉर एन एडजुडिकेशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द राइवल डिफेंडेंट्स। उनके अंदर उनका कितना शेयर है, मुझे ये क्लियर करो। सबको क्लियर हो गया? एवरीबडी क्लियर? Is everybody clear on this? Okay. Now, with this background, let's quickly go through 88. When two or more persons adversely claim to one another the same debt को दो से ज्यादा लोग मांगते हैं, और other property movable or immovable from other person. So can interpleader suit be applicable on movable properties? ये prelims का question है. The answer is yes. कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, फ्रॉम अनदर पर्सन who claims no interest therein and who is ready to pay and deliver the property to the rightful claimant. प्रॉब्लम यह है कि उसको rightful claimant नहीं पता चल रहा,
इसी बात के लिए वो सूट डाल रहा है, then that such other person, the plaintiff, may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of determining getting a decision as to whom the payment or delivery should be made, so that I am indemnified. Indemnify का मतलब क्या होता है कि मेरे को अब बचाव मिल जाए फ्यूचर केसेस से। कल को BCD है ना कहें कि तूने उसको ज्यादा दे दिया, मेरा हिस्सा उसको दे दिया, तो मैं आगे के सूट से अपने आप को इंसुलेट कर रहा हूं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनीफाई, टू इंसुलेट, टू सेव माई सेल्फ, provided that where any suit is pending in which rights of all parties can be decided, no suit of interpleader shall be instituted. पर जहां पे सपोज ऑलरेडी एक सूट चल रहा है BCDE के बीच कि मेरा हिस्सा कितना है, तो फिर इंटरप्लीडर सूट तो फायदा ज्यादा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इफ ऑलरेडी अ सूट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफेंडेंट्स कि अपना हिस्सा डिटरमिन करने के लिए, तो फिर इंटरप्लीडर सूट नहीं डाला जाएगा, बिकॉज दो सूट हो जाएंगे एक ही मामले पे। गॉट एवरीबडी गॉट इट? Okay, thank you, Shivansh. Is everybody clear? Now, with this background, let's quickly go to Rule 35. More or less यही है पूरा, जल्दी से देख लेते हैं Rule 35. Rule 35 deals with, इसका टाइटल क्या है? Interpleader. So, plaint कैसे डाली जाएगी? Rule 1. The plaint shall, in addition to other statements contain, ये चीज उसको क्लियरली बोलना पड़ेगा एफिडेविट से कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पैसा देने को तैयार हूं। द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट फॉर चार्जेस और कॉस्ट। मुझे बस कॉस्ट देना क्योंकि मैं फालतू का सूट डाल रहा हूं। एंड देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट्स, और मेरा डिफेंडेंट्स के साथ कोई आपस में बिहाइंड द सीन कोई तालमेल नहीं है। Now, where the thing claimed is capable of being paid into the court or placed in the custody of the court, the plaintiff may be required to pay it before he is entitled to any order. अब जहां पैसा इन्वॉल्व है, कोर्ट कहेगा कि ठीक है पैसा तो देना ही है ना, तो तुम एक काम करो, पहले पैसा कोर्ट में जमा कराओ। तो कोर्ट पैसा जमा करा लेगी, या अगर कोई ऐसी चीज है, छोटी चीज है जो कोर्ट की कस्टडी में ली जा सकती है, जो कोर्ट के मालखाने में रखी जा सकती है, तो कोर्ट विल टेक इट इनटू कस्टडी और कोर्ट में रख देगा। अब जहां पे ऑलरेडी सूट चल रहा है इन डिफेंडेंट्स के बारे में, नेचुरली अब ये वाला इंटरप्लीडर सूट नहीं डाला जाएगा। सेक्शन 88 में हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, हेयरिंग में क्या होगा? अब कोर्ट कहेगा प्लेंटिफ ने सारा पैसा जमा करा दिया, प्लेंटिफ की अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम तो घर जाओ, अब तुम घर जाओ, तुमने पैसा जमा करा दिया, तुमने पैसा देना था, हम डिसाइड कर लेंगे BCDE का आपस में क्या रिश्ता है, कितना उनका, हाउ मच ऑफ मनी, हाउ मच ऑफ परसेंटेज शुड दे बी गेटिंग। एवरीबडी क्लियर नाउ? एवरीबडी क्लियर हाउ द इंटरप्लीडर सूट विल मूव? Now, please remember one thing, जो रूल 5 है, हाँ वही मैंने बोला शिवांश, अगर डिफेंडेंट्स के बीच में पहले ही सूट चल रहा है तो इंटरप्लीडर सूट नहीं डाला जा सकता। सेक्शन 88 के लास्ट लाइन ये चीज क्लियर करती है कि ऑलरेडी अगर चल रहा है तो फिर कोई सूट नहीं डाला जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ध्यान से सुनना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। एजेंट्स कैन नॉट सू देयर प्रिंसिपल। एजेंट नहीं कह सकता कि मेरा प्रिंसिपल कौन है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता ऐसा है। सिमिलरली टेनेंट्स कैन नॉट सू देयर लैंडलॉर्ड्स कि जी मेरा लैंडलॉर्ड कौन है। सो एक चीज याद रखना कि एक टेनेंट और एक जो एजेंट है वो सू नहीं कर सकता, क्योंकि रिश्ता ही ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसलिए कल को ये नहीं कह सकते मुझे तो नहीं पता ये कौन है, फिर आप एजेंट कैसे बने।
अब इसके अंदर दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हैं, जल्दी से वो कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ jewels विद बी एज हिज एजेंट. ए ने बी उसके एजेंट के पास एक बॉक्स ऑफ जूल्स दे दिया, रख दिया. सी कहता है ये जूल्स मेरे से गलत तरीके से ए ने लिए, और वो बी के पास जाता है, कहता है ये डब्बा मुझे दो पूरे गहनों का, ये मेरे से ए चीटिंग करके ले गया है. क्या बी कह सकता है कि मैं ए को दूं कि सी को दूं? नहीं. क्यों? ही डज नॉट नो सी. तो अब बी इंटरप्रीटर सूट नहीं डाल सकता कि सर मैं ए को वापस दूं कि सी को दूं. मेरा रिश्ता एज एन एजेंट ए के साथ है, तो मुझे ए को ही वापस देना पड़ेगा. इंटरप्रीटर सूट नहीं डाला जा सकता. एवरीबडी क्लियर ऑन इलस्ट्रेशन ए? नाउ आई गो टू इलस्ट्रेशन बी. ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ jewels विद बी एज हिज एजेंट. ए ने बी को बॉक्स ऑफ जूल्स दे दिया कि तुम मेरे एजेंट हो, रखो मेरा. अब ए सी को लिखता है कि जी ये मैंने तुमसे लोन लिया था, मैं पे नहीं कर पा रहा. जो डब्बा मैंने बी को दिया है जूल्स का, वो एक कोलैटरल सिक्योरिटी रख लो. मैंने तुमसे 5 लाख रुपए लिया था, मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा. ये जो मैंने डब्बा रखा है बी का, ये सिक्योरिटी रख रहा हूं तुम्हारे पास सी की. सी को कहता है, राइट? A afterwards alleges that C's debt is satisfied and C alleges the contrary. अब A कहता है, अब C चला गया B के पास कि जी जूल्स दे, A ने मेरा पैसा नहीं लौटाया. A कहता है मैंने लौटा दिया था, C कहता है नहीं लौटाया. अब B डाल सकता है इंटरप्रीटर सूट. क्यों? क्योंकि A ने B को कहा था कि ये जूल्स C को दे देना अगर मैं इसका पैसा लौटा ना पाया. अब मुझे क्या पता आपने पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया. नाउ आई कैन पुट अप अ इंटरप्लीडर सूट. तो फर्क क्या है ए और बी में? ए में बी, ए और बी का रिश्ता था बस. बट जहां बी, ए ने बी को कह दिया कि सी भी मालिक हो सकता है, अब दो मालिक बन गए, आपस की उनकी लड़ाई है. अब बी कंफ्यूज हो गया, अब वो इंटरप्लीडर सूट डाल सकता है. सबको समझ आ गया? पूरा का पूरा लॉ इंटरप्रीटर सूट का क्लियर हो गया. क्या ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ आ गए? ये दोनों इलस्ट्रेशन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीलिम्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं. सो एक्सपेक्ट दिस टू कम अगेन एंड अगेन. ऑल दिस विल, these are very important questions. So I hope I had just 1 hour. Normally I take 2-3 लेक्चर लगते हैं मेरे इस पे, बट क्योंकि टाइम कम था मेरे पास, मैंने समरी सूट्स और इंटरप्लीडर सूट्स दोनों बहुत डिटेल में किए हैं. सो ऋषभ, पहले वाले में ए ने बी को एक सिंपल एजेंट के तौर पे कहा कि मेरे जूल्स रख लो. सी वॉज नोवेयर इन द पिक्चर. पर दूसरे केस में उसने कहा बी को कि सी को दे देना तुम जूल्स, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए, 5 लाख रुपए लिए. बाद में जब सी लेने आता है, ये कहता है नहीं नहीं, इसको मैंने पैसे दे दिए. बी को क्या पता, इसलिए अब वो कंफ्यूज है, अब वो डाल सकता है. सो अमित, दूसरे में क्या होता है कि जो बी है उसको ए ने कह दिया कि मैंने इससे पैसे लिए, तुम इस, अब सी का भी हक है. तो जब ए ने कह दिया कि तुम एज एन एजेंट मुझे भी दे सकते हो या सी को भी दे सकते हो, अब दोनों मांग रहे हैं. अब कंफ्यूज हो गया बी, मैं किसको दूं? दोनों मालिक बन चुके हैं. ऐसे केसेस में क्योंकि हम डीम्ड एजेंट मानेंगे उसको सी का, तो अब वो इंटरप्रीटर सूट डाल सकता है. Is everybody now clear about this entire law? Oh, thank you, Aditi. Thank you. All those who missed the lecture, please इसको रिवाइंड करके देख लेना. ये मेंस में 100% क्वेश्चन आएगा. इंटरप्रीटर सूट का भी आएगा और समरी सूट का भी. हो सकता है दोनों ही आ जाए, यू नेवर नो. सो अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं यूपी के, पंजाब के वगैरह, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. और मैंने हर एंगल से आपको कराया है. सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी टॉपिंग इन दिस. मैंने आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी दे दिए हैं, और लैंडमार्क जजमेंट्स भी कोट कर देना. थैंक यू एवरीबॉडी. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. गॉड ब्लेस.